ایپی تھراپی کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ بھی تھراپی ہے، یہ 5,000 سال پرانا جو ہے علاج ہے، طریقہ علاج، اور اب پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پنچر ہے، آپ کو پریشر ہے، جیسے کہ ہماری جو ہے یہ حجامہ تھراپی ہے، اسی طریقہ سے یہ بھی جو ہے یہ علاج ہے جس کو جو ہے ایپی تھراپی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسرون، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نون کا تو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو والقلم اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں قلم کی، ما یسرون کہ ہم نے سیدھی چیزیں بنا دی، ہم نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ہم نے جو ہے وہ ایسے آپ کو چیزیں بنا دی ہیں جو آپ کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ میرے ایک جو ہے وہ سطر کہتے ہیں، اصل میں جیسے دپٹہ ہوتا ہے، جیسے ناپنے والی چیز ہوتی ہے، اس کو سطر کہتے ہیں۔ تو ما یسترون، تو تمہارا جو ہے یہ تمہارے لیے جو ہے یہ ہم نے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے جو ہے والقلم، قلم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ۔ قلم بہت بڑی چیز ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو بہت بڑی جو ہے وہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے یہ آسانیاں پیدا کر دی، اور یہ ہم نے سیدھا راستہ آپ کو دکھا دیا، ہمارے لیے جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے ایک جو ہے وہ راستہ مقرر کر دیا ہے۔ تو راستہ کیا ہے کہ چلنے کا راستہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے علاج کا راستہ ہے، ہمارے لیے شفا کا راستہ ہے۔ قرآن کے اندر شفا ہے، یہ مولوی صاحب کا جو ہے میں نے جمعے کے اندر جو ہے وہ ایک آیت سنی مولوی صاحب سے جو ہمارے امام مسجد تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کلام پڑھ رہے تھے تو میں سن رہا تھا پیچھے جو ہے جمعہ کے نماز کے اندر، تو اسی کے متعلق جو ہے تھوڑی سی میں بات جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوں۔ تو نور والقلم جو ہے، قلم کی قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے علاج کو آسان کر دیا، تمام راستوں کو آسان کر دیا، اور تمام چیزوں کو آسانیاں پیدا کر دی آپ کے لیے، جو ہے تمام دنیا کے اندر آسانیاں آپ کے لیے۔ تو یہ آسانیاں جو ہے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بہت سے جو ہے ہم پیچھے بھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، جان بھی چکے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے ہی بیماری ہے اور ہمارے جسم کے اندر شفا ہے، درد ہی درد کا جو ہے وہ علاج ہے۔ تو درد ہی درد کا علاج ہے، کیسے یہ درد ہی درد کا علاج ہے؟ واقعی یہ صحیح بات ہے۔ تو اس میں ہے کہ 5,000 سال پرانا جو طریقہ علاج جو ہے، جو چائنا میں مقبول تھا، اب پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے۔ تو ایپی جو ہے، ایپی تھراپی جو ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے میکسی کے طور پہ جو ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں پوری صورت ایک جو ہے یہ پوری صورت اتار دی اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے، مطلب جو ہمارے لیے شہد کی مکھی کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے وہ ایک صورت اتار دی ہے، جس اور شہد کی مکھی کے بارے میں مکمل طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، کیسے جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل کو گزارتی ہے، کوئین کیا ہوتی ہے، اور وہ کیسے جا کے ایک ایک پھول سے جو ہے آپ کے لیے شہد اکٹھا کرتی ہے، اپنے چھتے میں لا کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے چھتے کے اندر بچے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے شہد جمع کرتی ہے، اور شہد میں شفا ہے۔ تو مکھی کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مکھی کے ڈنگ کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ جو ہے نئی تحقیق، نئی بات اور نئی چیز جو ہے آج سے جو ہے 5,000 سال پہلے جو ہے آزمائی گئی ہے، اور اس کے بعد ابھی بھی جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر مقبول ہو رہا علاج۔ تو اس کو جو ہے ایپی تھراپی کہتے ہیں۔ ایپی تھراپی اصل میں جو ہے یہ ایپس سے لفظ نکلا ہے، جو ایپس کا مطلب یہ ہے کہ ایپس جو لفظ ہے یہ ایپس میلفی کا پورا لفظ ہے۔ مکھی کا جو زہر ہے، شہد کی مکھی کا زہر جو ہے، چھوٹی ہو جو بڑی ایک علیحدہ چیز ہے، تو مطلب کچھ چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں، کچھ بڑی مکھیاں ہوتی ہیں، دونوں چھتے پر آتی ہیں، دونوں ایک ہی جیسے لائف سٹائل سے گزارتی ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ اصل میں جو ہے وہ شفا کا باعث ہے۔ تو اس کو پینا، اس کو کھانا، اس کو جو ہے لگانا جو ہمارے لیے جو شفا کا باعث ہے۔ میرے پاس زرعی یونیورسٹی سے اکثر بچیاں ریسرچ کے سلسلے میں آتی ہیں، وہاں سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں سے آتی ہیں،
तो वो जो है वो इसी के बारे में बात करें कि शहद एक बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक है। तो उन्होंने जो इस पे रिसर्च भी की और काम भी किया, और बच्चियों ने एमफिल का काम उनको मैंने कंप्लीट करवाया है। तो इस तरीका से जो है ये बहुत से जो है ये ड्रिंक जो है और वाकई शहद के अंदर छुपा है। मैंने खुद इसका जो है तजिया किया है। तो पिछले दिनों मैंने आपको बता रहा था कि एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको जो है वो डायबिटीज थी। वो उसके पाँव खराब थे दोनों, तो मैंने उसके पाँव के ऊपर जो है पहले सबसे जो है वो मैक्सिलम की पट्टी की मैग्नीशियम सल्फेट की। उसके बाद जो है मैंने उसको जो है वो पट्टी की एक पुल्टस की, जिसको क्योलिन पुल्टस कहते हैं। और तीसरी पट्टी मैंने शहद की कैलाडोला में शहद मिला के जो है, जिसको सब जो है ये गेंदा जिसको कहते हैं फूल, उसका जो है असर लेके उसके अंदर शहद मिला के दोनों की जो मैंने पट्टी की, और अल्लाह ने जख्म बिल्कुल ठीक कर दिए। मतलब कि जाबितस के मरीज के जख्म ठीक हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे मरीज आते हैं मेरे पास जिनको अल्लाह ताला शफा देते हैं। तो अब अगले साल उसको यहाँ से जो है रजाबाद से वो शेख साहब थे, वो समनाबाद चले गए। वहाँ वो मतलब जो है वो उनको फिर वही मसला हुआ दोबारा अगले साल में। तो अब उनकी टांग जो है ज्यादा खराब हो गई। तो वो एक मदर साहब कोई है, मतलब कि मैं उनको साहब ही कहूँगा, मतलब वो सुरजन टाइप है, मतलब जरा नहीं है, सुरजन है। सुरजन हम इसलिए कहते हैं, सर्जन तो जो है वो सही मैंने जराहा ही के होता है, लेकिन सुरजन जो होता है वो जो है वो चीर पाड़ करके जो है चीजों को जो है कसाब की तरह जो है वो तबाह कर देता है। तो उसने उसकी टांग काट दी। जब उसने टांग काट दी तो फिर उसको याद आया कि मैंने तो फलाह हकीम से पिछले साल इलाज करवाया था, दो चार पट्टियां करने से मुझे आराम आ गया था। तो अब तो मैं ये फिर टांग कटवाने के बाद वो सर पे हाथ रख के मेरे पास आया, तो अब मैं उसका क्या इलाज कर सकता था। तो शहद की मक्खियां जो है ये दर्द का जो है वह दरमा भी बन सकती है, दर्द का इलाज भी बन सकती है। तो जिस जगह पे एपस मेलिफिका इसका जो है बेसिक जो दर्द जो होता है उसको एपस मेलिफिका कहते हैं। तो एपी इसी से निकल, और थेरेपी तो आपको बताया जो हम इलाज करते हैं उसको थेरेपी कहते हैं। तो एपी थेरेपी इसी को कहते हैं कि हम जो है ये शहद की मक्खियों से इलाज करते हैं। तो बहुत सी रिसर्च इस पे दुनिया पूरी दुनिया में हो रही है कि शहद की मक्खी जो है वाकई जो है वो दर्द का इलाज है। तो शहद की मक्खी को मतलब आपने देखा होगा इसका छत्ता होता है, जब इसको छेड़ा जाता है तो सारी मक्खियां जो है भाग के आ जाती है। और फिर क्या होता है, वो लड़ जाती है, आपका जिस्म सूज जाता है। जब जिस्म सूज जाता है आपको बुखार हो जाता है। एक मरीज मेरे पास है, उसकी दोनों आंखें बंद हो गई, इतनी ज्यादा मतलब शहद की मक्खियां जो उसको लड़ गई। तो हमारे मुझे एक और बात भी याद आ गई, चले शुगल बात है ये भी। मेरे पास एक दुआ साहब होते, दुआ साहब डिस्पेंसर को कहते हैं, राणा साहब उसका नाम था, राणा मोहम्मद खान। नया लाहौर में हम जो उस वक्त मेरी जॉब थी, तो वो पोलियो के कतरे पिलाने उस वक्त जाया करते थे राणा साहब। तो वो किसी गांव में गया तो वहां पे कोई बंदा शहद उतार के लेके आया, शहद का छत्ता तो उसने बाल्टी में डाला हुआ था। तो राणा साहब ने चेक करते करते जो है तकरीबन एक पाव से ज्यादा जो है शहद खा लिया। अब देखिए शहद बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म है। और मैं तो कहता हूँ ये पित्ते की पथरी का जो है इसमें नींबू डाल के अगर दे तो बेहतरीन किस्म का इलाज भी है। और बहुत से इसके शहद के फायदे हैं, ये हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शहद की मक्खियों से इलाज के बारे में जो है थोड़ा सा जान रहे हैं। तो इस तरीके से जो है शहद की मक्खियां जो है वो जब लड़ जाती है तो वो पूरा जिस्म जो है सूज जाता है। तो अब राणा साहब को क्या हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जब हमने चेक किया उनका ब्लड प्रेशर, अगले रोज छोटी पकड़ के जो है तशरीफ ला रहे थे, तो वो कहते मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमें समझ नहीं आई कि क्यों इसको चक्कर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो जो शहद बेचने वाला तशरीफ ले आया, उसने हमें बताया कि सर इन्होंने ना तकरीबन पाइया एक पाव सवा पाव जो है 1.5 पाव शायद जो है ये बाल्टी मेरे से वैसे ही जो है ना खा लिया था। तो मैं तो देख रहा था बंदा बचा है ये नहीं बचा है। तो फिर हमने उसको जो है ट्रीटमेंट किया और उसको घर भेज दिया एम्बुलेंस में डाल के। तो इस तरीके से ज्यादा शहद खाना भी नुकसान दे और ज्यादा मक्खियां लड़ना भी नुकसान दे, और बाज औकात मौत भी वाक़ हो जाती है।
تو اس لیے یہ بہت زیادہ جو ہے خطرناک بھی ہے، لیکن یہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر یہ اس کا جو ہے ابھی طریقہ کار کا علاج اتنا زیادہ نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے شرارتاً جو ہے بہت سے لوگ شہد کی مکھیوں کو چھیڑ کے، ان کے چھتے کو چھیڑ کے جو ہے یہ بخار کا اور جسم کی سوجن کا، مختلف جگہ کی سوجن کا باعث بناتے ہیں۔ لیکن اس کے زہر میں جو ہے اصل میں جو ہے فارمک ایسڈ ہوتی ہے اور ٹینک ایسڈ ہوتا ہے، اور 4 ایسڈ اس کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں، سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ایسڈ کی وجہ سے یہ وہاں پہ جو ہے یہ جگہ پھول جاتی ہے، سوج جاتی ہے، تضابیت وہاں پہ ہو جاتی ہے، اور وہ تمام جو ہے وہ جو سمٹم ہوتے ہیں انفلمیشن کے، وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان میں سوزش کہتے ہیں۔ تو سوزش کے سمٹم جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے ڈنگ لگنے سے جو اذیت ناک درد ہوتی ہے، وہ جو ہے دوا میں ایک ہی دوا میں پوشیدہ ہے، اور جس میں جو ہے اس کا علاج ہم جو ہے گینٹھیے کا علاج بھی سے کر سکتے ہیں، ہڈیوں اور اعصاب کی دردوں کا علاج بھی سے کر سکتے ہیں، اور کئی بیماریوں میں اس کے لیے شفا بخش علاج ہے۔ ایپی لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی شہد کی مکھی کے ڈنگ کے ہیں، اور لفظ سے بنا ہے کہ ایپی تھراپی، تو شہد کی مکھی کے ذریعے علاج کا طریقہ ہے۔ تو پرانے زمانے میں لوگ مکھیاں کھا بھی جایا کرتے تھے، شہد کی مکھی کھانے سے جو ہے وہ کہتے بڑی جسم میں طاقت آتی ہے، ہر قسم کی طاقت۔ آج میں کوڈ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ جسم کو طاقت دیتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا آنے کی کفیت کو بھی روکتی ہے، اور یہ بڑی مفید ہے۔ اس کو کھانے سے دونوں مطلب جو ہے وہ بہت فائدے ہوتے ہیں۔ یہ مردہ حالت میں بھی اس کو نگلا جا سکتا ہے، کیپسول میں ڈال کے اس کو گلپ کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو ہے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر اس تھراپی کے اوپر کام ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر خاص طور پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ اسپین کے اندر جو ہے وہ منعقد ہوئی، جس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے ہر بندے نے مقالے پیش کیے، جس میں جو ہے اصل میں بتایا گیا ہے کہ اعصابی نظام کی بیماری جو ہے ملٹیپل سکروسس میں جو ہے یہ 5 لاکھ مریضوں میں جو موجود ہے، یہ بیماری مریضوں کو معذور کر سکتی ہے۔ امریکی جو ہے وہ ایپی تھراپی ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ شہد کی مکھی کے ڈنگ کے علاوہ علاج جو ہے وہ کو فائدہ پہنچا ہے۔ 1000 مریضوں سے واشنگٹن یونیورسٹی کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے میڈیکل یونٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے درجنوں لوگوں کو جو ہے ایسے خون موصول ہوئے ہیں جس میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ طریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں جو ہے یہ طریقہ جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے جس پر اور بھی تحقیق جاری ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں ان کو بھی جو ہے اس تھراپی پہ لگائیں، اور اس پہ جو ہے یہ کام کروائیں، تاکہ آئندہ جو ہے وہ آنے والی نسل جو ہے ہماری یہ تھراپی کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑی ہو جائے۔ اس حوالے سے امریکہ ایپی تھراپی ایسوسی ایشن کے ذریعے تمام کیلیفورنیا میں امریکہ کا ایک اہم ایپی تھراپی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ شہد کی مکھی کے زہر کے علاوہ آزمائشی تجربات امریکہ میں حال ہی میں شروع کیے گئے، تاہم یہ طریقہ علاج چین کے طبیبوں کے اندر، یعنی کہ چین کی جو حکیم ہے، انہوں نے گزشتہ 5 سال پہلے شروع کر دیا تھا۔ جیسے کہ وہ آکوپنچر کرتے ہیں، آکوپریشر کرتے ہیں، اسی طریقہ سے وہ اور بھی اس کے جو ہے وہ کچھ علاج ہے، جو چیزوں کو جلا کے ہم وہاں پہ جو ہے رکھتے ہیں، تو یہ سارے ہم وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں۔ تو جو دوست سیکھنا چاہتے ہیں تو ہاسپٹل تشریف لائیں، تو ان کو ہم گائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیلی فون پہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے کوئی بھی بات، اس کے لیے معذرت کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیلی فون پہ یا مطلب کہ جو ہے ابھی جو ہے واٹس ایپ اور ٹیلی فون جو ہے اس پہ جو ہے وہ یہ پریکٹیکل ورک ہے۔ تو آپ تشریف لائیں، میں جو بھی مریضوں کا علاج کرتا ہوں ان کو سامنے کروں گا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، بڑی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ تشریف لائیں۔ بہت سے جو ہے باقی یونیورسٹیز کے طالب علم آ رہے ہیں، زرعی یونیورسٹی کے، اور باقی جو ہے یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، رفا یونیورسٹی کے، اور باقی یونیورسٹیز کے طالب علم آتے، تو ہماری یونیورسٹی کے طالب علم نہیں آتے، تو ان کی مرضی ہے، وہ مس کر رہے ہیں بہت سی چیزوں کو۔ تو آج بھی جو ہے یہ میں نے محسوس کیا
मेरे पास जो जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज है उनके जो है वो फिजियोथेरापी वाले आते हैं, और उसके बाद न्यूट्रिशन वाले आते हैं, और ये साइकोलॉजी वाले आते हैं, हमारे खुजाली डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स आती है। तो सारे स्टूडेंट बाकी आते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट वाले जो है वो नहीं आते, तो उनकी मर्जी है, तो हम तो जबरदस्ती तो नहीं कह सकते। टीबीओ कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, हम मोस्ट वेलकम उनको कहते हैं। लेकिन ये फूल पे मैं किसी को ये अकुपेंचर या ये वाली जो है वो एपिथेरेपी नहीं समझा सकता। ये सिर्फ जो है ये इंट्रोडक्शन है। तो जो गैल्थिया और जोड़ों की सोजिश को कुछ दर कुछ तो इस्तेमाल करते थे चाइना वाले। तो इस तरीका से मक्खी के डंक के अलावा जो है ये पूरी तौर पे जो है मगरबी लंदन के अंदर जो है वेबले बासी टोली चस्टर और दीगर जो है रियासतों में ये बहुत मशहूर है। इस तरह से जो है शहद की मक्खियां पालना 59 टोली का मशवरा था। इसे दोनों कुलों और टांगों की जोड़ों में शदीद सोजिश की शिकायत थी, हत्ता कि अपने चंद साल पहले वो हिलने जुलने के काबिल नहीं था। तो उसने जो है वो इंतहाई ज़ईफ हो चुका था। उसने मक्खियाँ जो है वो पालते हुए अपने जिस्म को जो है टोनी ने शहद की मक्खी को जो है वो अचानक लड़ गई, उसके डंग उसके अंदर चला गया, वो जगह सूज गई। तो सूजने के बाद उसको तकलीफ की में कमी महसूस हुई, तो उसने फिर खुद अपने जो है उसको तजस्सुस पैदा हुआ, और उसने खुद अपने जिस्म को जो है वो लगानी शुरू कर दी मक्खियाँ। इस तरीका से वो चलने के काबिल हो गया, और बर्न में 3-4 दिन रहा, और उसके बाद जब मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको आराम आ गया। तो इस तरीका से जो है ये एक मोजा था जिसकी वजह से जो है पूरा जिस्म जो है वो जोड़ों की दर्द का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया। अंग्रेजी में इसका इलाज नहीं है, वो डाइक्लोकोर्टिसोन ट्रामल, यही चार जो है वो उनके पास जो है वो डाइक्लो इंजेक्शन था, बोर लगाई और चलो। उनके पास इसका इलाज नहीं है परमानेंट है, तो ये परमानेंट इलाज है। तो ये ठा ठा वाली बात नहीं है, बल्कि हा हा वाली बात है। तो इस तरीके इस दौरान जो है वर्जिश भी करता रहा। ताहम मुझे ये जान कर बहुत खुशी हुई कि ये वाला जो है मैंने खुद अपना इलाज जो है दरियाफ्त कर लिया। डॉक्टर जिम्स हैकल के लिए जो है वो 8 साल से जो है वो एपिथेरेपी पर अमल पाना होना शुरू किया। इन्होंने जो हजारों मरीजों का जो है इलाज किया, जिसमें जो है मल्टीपल प्लास्टिक्रोसिस, गैंठिया, जोड़ों की सोजिश, पेशाबी निज़ाम की खराबियाँ, अक्जिमा वगैरह इसमें शामिल है। तो अक्जिमा भी जो है ये बहुत सी किस्मों का होता है। ये खास तौर पे जो यहाँ पे बहुत से जो है सोराइसिस के मरीज हमारे पास आते हैं, तो उनके लिए जो है ये बहुत मुफीद इलाज है। सोराइसिस में बहुत अच्छा काम करता है ये वाला। तो 30 से 30 मरीजों का जो इन्होंने इलाज कर चुके हैं, जिसमें जो है वो इन्होंने अपने ऊपर भी मक्खी के डंक को तजर्बात की नजर किया, और फिर जो है मुख्तलिफ चीज़ों को रिजेक्ट करके जो इन्होंने जो देखा। तो ये आपके जिस्म के दफा को भी भरपूर जो है अंदाज में रबर दबा करता है, और बेशतर मुकम्मल तौर पर नहीं तो खास हद तक अपने मसाइल से निजात हासिल कर लेते हैं। इस तरह से डॉक्टर हेल्थ जो कि जर्मन के रहने वाले थे, इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो इलाज शुरू किया, और मरीजों पर जो है वो 2 शहद की मक्खियों को दबाया। क्योंकि शहद की मक्खी का जहर महदूद है, इसलिए जो है चंद बाज अफराद के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसलिए ऐसे एहसास जिनको जो है ये एलर्जिक हो, उन अफराद को जो है इसी जहर से जो है वो बचाना चाहिए, और जिसमें जो है हार्ट ट्रबल भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उन अफराद को भी जो है ये सूट नहीं करता। अमेरिका में जो है मुख्तलिफ मुतद ममालिक में जो है शहद से डंक के जो है वो बहुत ज़्यादा इलाज किया गया है, जिसकी वजह से जो है वो आर्थराइटिस और फाइब्रो मैगिया में जो है वो कई बीमारियों का जो है वो इलाज किया गया, जिसमें उन्होंने जो है वो एलोपैथिक तरीके में जो है वो जो लोग आगे जा चुके थे, उन्होंने ये तरीका आजमाया, और इस तरीका से जो है डंग बनवा कर जो है ये अपने जो है वो जिस्म को जो है दुरुस्त किया, और मुख्तलिफ दर्दों को जो है दुरुस्त किया। लॉस एंजल्स के अंदर जो एक रहायशी खतून ने जो है जोड़ों का दर्द था, इसलिए एक दिन में शहद की मक्खियों का 80 डंग करवाए, तो उनके उसके नतीजे में जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। जनूबी कोरिया की यूनिवर्सिटी में भी तहकीक की गई, और बताया गया कि शहद की मक्खी के डंग में सोजन कम करने में जो है बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है।
इसी तरीके से यूनान की यूनिवर्सिटी में चूहों पर तजर्बात किए गए और जिसमें जो है वो ये तहकीक की गई, रिसर्च की गई कि शहद के मक्खियों के डंक से जो है वो हड्डियों की बीमारियां कम हो जाती है। इसमें विटामिन डी होता है और कैल्शियम को अब्जॉर्व करने में इसकी बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। इसी तरह से सालरवा में जो है वो ट्यूरस में शहद की मक्खी का डंक कई बीमारियों के लिए मकबूल हो चुका है। तो ट्यूरस में जोड़ों का दर्द, मैदे का दर्द, मैदे की सोजश, अपाहजपन और आंतों की जलन में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जो है मक्खी का जहर तैयार साबित हुआ है। ट्यूरस के तिबी माहिरीन के मुताबिक शहद की मक्खी का जहर जो है वो 300 से ज्यादा जरासीम कुछ मवाद पाए जाते हैं। ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है और एंटीवायरल भी है। तो इस ट्यूरस के मालदीन ने जो है डॉक्टर स्तूर उनका नाम है, उन्होंने 5,000 मरीजों का इलाज जो है बजरिया एपीथेरेपी किया है। 19वीं सदी से जो है वो अभी जो है 1930 की दहाइयों से रूस के कुछ मालजों ने अभी ये तहकीक शुरू की है और शहद की मक्खी के जहर को जो है वो पैराथायराइड को कार्टिसोल नामी हार्मोन पैदा करने में जो है वो तहरीक मिलती है। ये हार्मोन माले वर्म है और बाद बाद जो है वो तहकीक से साबित हुआ है कि इस जहर से जो है वो एंडोफ्रीन जो आपको पता है दिमाग से खारिज होता है, ये कीमियाई मादा जो है वो दर्द को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो ये CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से खारिज होने वाला एंडोफ्रीन जो है इसकी वजह से जो है पैदा होता है और वो खारिज होता है। पैदा तो नेचुरल होता है ना, तो ये खारिज करने में ये जब दर्द होती है तो ये हमारे नॉरएपिनेफ्रिन और नेपिनेफ्रिन जो है ये ब्रेन को फौरी मैसेज देते हैं और उसके मुकाबले में जो है ये हमारे जिस्म में जो है वो एंडोफ्रीन पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है ये दर्द भी दूर हो जाती है और सोज भी कम हो जाती है। इसी तरीके से जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर सूजन जो है ये हिस्टामीन की जो है वो हिस्टामीन एंटी हिस्टामीन देते हैं, हिस्टामीन ज्यादा हो जाती है वहां पे जो है ये तमाम चीजें जानी शुरू हो जाती हैं, सूजन हो जाती है, तो इसको कम करने में ये एक अहम किरदार अदा करती है। तो जमाना कदीम से इसको जो है मक्सी मालज या कि जो है मक्खियों का जो मालज करार दिया गया था। तो अब जो है इसका नया नाम जो है वो एपिथेरेपी को करार दिया गया है। ये गंजेपन के लिए बड़ा मुफीद है। गंजेपन जो है ये PRP जो है, शायद आप मेरे दोस्त भाई जानते हो कि PRP जो है वो कहते हैं जी कि उसमें जो है वो एक जगह से लेके जो है ये प्लाज्मा रिच होता है, तो उसको लेके जो है दूसरी जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो वहां पे कोई भी मेरे बाल ना आ रहे हैं या कोई और मसला हो तो PRP से हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये PRP का बेहतरीन तरीका है। उससे हमें जो है वो थोड़ी सी ब्रेक सिरिंज लगानी पड़ती थी, लेकिन ये नेचुरल सिरिंज है जो कि इंजेक्ट हो जाती है खुद ही और वो जहर फैल जाता है और PRP वहां पर रिच प्लाज्मा जो है पैदा होना शुरू हो जाता है और जो है वो पॉलीमरेज जो है वो खुद पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बहुत मुफीद है। इसी तरीके से ये कुत्ते के जहर के लिए भी बड़ा मुफीद है। मतलब जहर जहर को काटता है, लोहे लोहे को जैसे काटता है, इस तरीके से जो है ये मक्खी का जहर जो है ये कुत्ते के जहर को खत्म करने में एक जो है वो अहम किरदार अदा करता है। कदीम मिस्री मुशिदे जो है शहद की मक्खी के डंक को गैंठिया के लिए इस्तेमाल करते थे। बाद यूरोपीय मुल्कों में कुरून वस्ती जो है वो शहद की मक्खी को जलाकर तेल में इसका महलूल तैयार करते हैं और फिर लेप करके जो है मुख्तलिफ हिस्सों से दर्द का दूर करने में जो है किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से सुरख मिर्च के साथ जो है जिसको कैप्सिकम भी कहते हैं, कैप्सिकम के साथ इसको मिला के इसका जहर जो है ये एक ट्यूब बनाई गई है जो कि जहर को भी खत्म करती है, सोज को भी खत्म करती है, बर्फ को भी खत्म करती है। तो ये जो है ये दर्द को दूर करने के लिए बड़ा मुफीद है। कैप्सिकम क्रीम उसको कहते हैं नहीं। तो कैप्सिकम जो सुरख मिर्च से जो है वो हासिल किया हुआ मवाद होता है। यूरोप में ऐसी मशहूर हस्तियां भी गुजरी है जिन्होंने शहद की मक्खी के जहर को अपने जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो इलाज किया और शहद की मक्खी से हासिल शुदा अशिया को तैयार करदा दवाएं बज़ाहिर जो है वो जरासीम कुश और शफा खसूसियात के लिए बहुत मशहूर भी है और बड़ी मुफीद भी है।
एपिथेरेपी चीन में कमोबेश जो है 5,000 साल से रहा है और एक्यूपंक्चर के माहिर ने शहद की मक्खियों के जहर से काम लेने की कोशिश की है। इसमें जो है सुई के ऊपर जहर वो लगा के जो है वो उसको जो है जिस जख्म उस जगह पे स्टिमुलेट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये एक तो वहां पे सेप्टिक नहीं होता वो जगह जख्म, और दूसरा जो है जब जहर अंदर चले जाता है तो शिफा का जो है वो मुकम्मल पैदा होने की चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। बाद साइंसदानों ने यह तजर्बा किया है कि शहद की मक्खी को जहर को टीके की शक्ल में जिस्म में दाखिल किया, लेकिन यह खासा मुश्किल और पेचीदा अमल है जो कि नुकसानदेह साबित हुआ, और इसमें जो है इस अमल पर इत्काल रखने वालों ने जो है वो अपने मुंह की खाई। तो इस पर जो है वो मक्खी जो है जिस्म से निकाला हुआ जहर को वो तासीर नहीं रखता, जो बराह रास्त जो है जिस्म के अंदर डंग मारने से तासीर बेहतर होती है। तो उसका जो है जहर जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, नेचुरल तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, और इस डेट उसमें कम होनी चाहिए। जब हवा लगती है तो जो एच होते हैं वो टूट के जो है पानी की सूरत तैयार कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके असरात जो है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो एच प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं जो नेचर में मौजूद होती है, तो पानी की सूरत तैयार करते हैं, जहर का असर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में मुंतकिल होने वाले जहर तो जो है वो पानी ही बन जाता है। चीन के दारुल बीजिंग में जो है वो कायम क्लिनिक के माहिर वांग मैगन की मुताबिक जो है इनके पास अब तक 27,000 अफराद का इलाज जो है इस गरज से आ चुके हैं। मैगन ने ये बात का इतराफ किया है कि शहद की मक्खी का डंग लगवाना जो है यकीनी तौर पर तकलीफ दे अमल होता है, लेकिन ज्यादा तकलीफ दे अमल जो है वो अमराज से निजात मिल जाती है। यानी कि जोड़ों का दर्द जो है चल ही नहीं सकता बंदा, वो जो है ये ट्यूब इस्तेमाल करने से, डंग का ट्यूब इस्तेमाल करने से जी और ये जो है लगाने से जो है वो उसको फायदा हो जाए, वो बेचारा जो है वो ज्यादा तकलीफ से कम तकलीफ की तरफ चले जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। एपिथेरेपी के माहिरीन जो है वांग मैगन ने बताया कि वो शहद की मक्खी को पकड़कर मरीज के बदन पर बीमारी के मकाम पर रखकर मक्खी के सर को जोर से इस वक्त तक दबाए रखता है जब तक अपना डंग निकाल कर जहर बदन में उतार नहीं देती। बात के मुताबिक इस तरीका से जो है कैंसर से लेकर गैंट्रिया तक का दर्जनों मरीजों का वो इलाज करके जो उसको शफायाब जो है वो कर चुके हैं। वांग मैंगन ने जो है वो शहद की मक्खी के डंग को खास तौर पर मफलूज शुदा निचले दाढ़ के लिए जो इस्तेमाल किया, जिसमें जो है उसका दावा है कि ये शहद की मक्खी का डंग जो है वो कुव्वती मदाफत में भी इजाफा करता है और मदाफती इलाज के तौर पर बहुत ज्यादा वो असर रखता है। तो इसलिए जो है वो हमें दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि हम भी जो है शहद की मक्खी के डंग से जो है वो आर्थराइटिस, जोड़ों का इलाज, जोड़ों के दर्द और मुख्तलिफ अमराज का जो है वो कामयाबी से इलाज कर सकते हैं। तो गर्ज ये कि दुनिया में जो है वो एपिथेरेपी कई पेचीदा और लाइलाज अमराज का जो है वो जैसे पेन मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अहम और मकबूल हो रहा है, तो हमारे पाकिस्तान में भी इसका जो है वो इलाज हो सकता है। हम इसको जो है वो अपना सकते हैं और सुन्नत के मुताबिक इसको जो है इस्तेमाल करके जो है हम इससे फायदा उठा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों और भाइयों, तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ये एपिथेरेपी का जो है बहुत ज्यादा जो है ये रोल है हमारे जो है ये दुनिया के अंदर। तो मैं अपने एक दो तजुर्बात आपको बयान कर देता हूँ। पैंसरा से जो है मेरे पास एक मरीज आया, बच्चा था 8-9 साल की उसकी उम्र थी, 8 साल तकरीबन। हॉस्पिटल के अंदर आया मेरे पास सिविल अस्पताल में। तो मैंने उसको देखा, वो उन्होंने हमारे भाइयों ने जो भाई है ना हमारे अंग्रेजों के जो है डाकदार हैं, उन्होंने उसको जो स्टीराइड लगा लगा के ना मतलब कार्टिसोल पता नहीं कौन कौन से जो है ये इतने ज्यादा स्टीराइड मतलब सोलो कार्टिव और कैनाकॉट ए और कैनाकॉट बी पता नहीं कैनाकॉट डी और पता नहीं कौन कौन से जो है वो इंजेक्शन लगा के उस मरीज को जो बड़ा गर्क किया हुआ था। इतना मोटा ताजा मरीज और सूजा हुआ पूरा। तो वो मेरे पास आ गए अचानक। तो डॉक्टर साहब मेरे पास जो अभी तो डॉक्टर साहब बैठे थे, तो हम दोनों ने तजवीज़ किया उसके लिए एपिस मैग्नेटिका जो है 1 डोज उसको दी, सिर्फ 1 डोज।
तो उसको कहा कि 3 दिन बाद आना है, तो फिर इसके बाद हमें बताना है। तो 3 दिन बाद जब वो बच्चे को लेके आए तो बच्चा स्लिम एंड स्मार्ट और खूबसूरत और मिठाई का डब्बा साथ लेके आए। तो इस तरीका से बहुत से ऐसे जो है वो मरीज, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास तशरीफ लाते हैं जिसकी वजह से जो है इसका इलाज कर सकते हैं और इलाज होता भी है। तो इस तरीका से जो है ये बहुत से अमराज का हम इलाज करते हैं जी। बहुत बेहतरीन जो है ये इलाज है। एपिथेरेपी का इलाज जो है नेचुरल है, अल्लाह ताला का ये देन है। और शहद की मक्खी के मतलब जो है अल्लाह ताला पूरी सूरत उतारी हुई शहद के मतलब जो है बहुत मुफीद है। तो इसलिए जो है आज हमारा टॉपिक तो बेसिक था, हकीम साहब का एक तज़किरा था जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। हकीम जो है ये बड़े प्यारे हकीम नाज़िम जहां हकीम मोहम्मद आजम खान का तज़किरा था। ये हम इंशाल्लाह कल पे पेंडिंग कर लेते हैं। इनके जो है 3 अक़वाल जो है वो आपको मैं सुना देता हूँ जी। हाज़िर तिब्बा को हदायत की बीमारी की हालत में एहतियात और परहेज एक ऐसी लगाम है जो सेहत को बदन और मिजाज की तरफ खींचती है। दिन का खाना खा कर जरा सा लेट रहना, रात का खाना खाकर कुछ देर चहलकदमी हाजमा के लिए बड़ा मुफीद है। खाना खाकर फौरी ही किसी सख्त मेहनत का काम करने में न लग जाए, इससे जिस्म की फजलात रवैया और अकूलियत पैदा होती है। तो बहुत से जो है वो मरीज आते हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, औरतों को भी कहता हूँ कि ठंडा तत्ता ना हुआ करे। अभी जो है वो लेक्चर शुरू करने से पहले भी एक दो एक दोस्त का फोन आया तो वो कह रहे थे कि मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, इस तरीके से जो है मुझे तरीलियां आ रही, मुझे अंदर से बुखार महसूस हो रहा है, वैसे बुखार नहीं है। तो वो ठंडे तत्ते हो जाते हैं जब ये मौसम होता है ना, खास तौर पे ये सावन भादों का। तो इसमें जो है जब गर्म सर्द बंदा हो जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। बहुत से माएँ जो है अभी जो है वो रोटी पका रही होती है, चूल्हे के आगे बैठी होती है, तो बच्चा रोया और उसके वैसे जो है दूध साफ भी नहीं किया, उसको वैसे ही देना शुरू कर दिया। अब जितनी भी जो है पसीने की गलाजत है बच्चे के मुंह में जाएगी, तो बच्चे को पोटियां नहीं लगेगी या बच्चे का मुंह खराब नहीं होगा, तो और क्या होगा। तो भी एहतियात की जरूरत है, एहतियात करें, सफाई का ख्याल रखें। तो इस तरीके से जो है आप बहुत से अमराज से नेचुरली तौर पर बच सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्त और भाइयों का। माजूद मुदीर बैठे हुए थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट लेक्चर शुरू किया। बहुत शुक्रिया सर का।